Hello everyone, I'm back with the new topic, life process. This is a very important topic of class 10th and this is first chapter of biology. In this chapter, we'll talk about various terms for the survival or for the maintenance of life. What is required? That is nutrition, digestion, respiration, transportation, excretion. हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. इस ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट टर्म्स को इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूट्रिशन? सो इट इज़ अ मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग. हम सराउंडिंग से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो न्यूट्रिशन है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. So nutrition is, what is nutrition? The things which we get from the surroundings. It is broadly classified into two categories. One is autotrophic nutrition, another one is heterotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? ये वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करता है. अगर हम बोले क्या हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते? नहीं, क्योंकि हम लोग अपने खाने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. हम खाना ज़रूर खुद बनाते हैं पर ये सारी हम डिपेंडेंट हैं, हम स्टिल डिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर. सो व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन in which organism manufacture their own food. It does not depend upon animals or plants. Whereas heterotrophic mode of nutrition is a mode of nutrition in which organism depend upon plants and animal. Let me give you an example. If you talk about plants, they manufacture their own food. अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं अपना खाना खुद? With the help of photosynthesis. So let me tell you the photosynthetic equation. How does they manufacture their food? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, पानी लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल to form glucose, C6H12O6. This is known as glucose and plus oxygen molecule will be released. I know what बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को क्रैम करते हैं. कैसे क्रैम करते हैं? 6CO2, 6H2O, C6H12, 6O2. ये 6 कुछ नहीं है. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड केमिकल रिएक्शन. इन दैट चैप्टर आपने बैलेंसिंग करना सीखा था. सो दिस इज what that 6 is nothing but the balancing. See how many molecules of carbon are here? 6. That is why we have used 6 over here. Now see how many hydrogen molecule are here? 2. How many here? On the right hand side 12 molecules of hydrogen. So what we'll do, we'll put 6 over here. So how many molecules of hydrogen on the left hand side? 12. Again how many oxygen? 6 oxygen plus 6 2s are 12 oxygen over here and 6 oxygen over here. Total comes out to be 18 oxygen molecules. Right hand side, see 6 molecules over here oxygen, and if we'll put 6 over here it will become 12. So 12 plus 6 is 18. So this is how you'll balance the equation. So don't cram it, just memorize it. How you are going to do is carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, it will form glucose plus oxygen molecule. This is photosynthetic reaction. इस तरीके से प्लांट अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. बट इफ यू टॉक अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द वेरी गुड एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स. We human beings come into this category. Even the fungi come into this category. The animals also come into this category. So these are all heterotrophic nutrition because they depend upon plants as well as on animals. So now let's study about the classification of heterotrophic mode of nutrition. Now this heterotrophic mode of nutrition is broadly classified into 3 categories. One is saprophytic nutrition, another one is parasitic nutrition, and third one is holozoic mode of nutrition. Let's study it individually and in detail. What is saprophytic mode of nutrition? ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म मरे हुए जानवरों पे डिपेंड करता है. मतलब दे गेट द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म. जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरियाज की, और फॉर एग्जांपल यू कैन टेक बैक्टीरिया, यू कैन टॉक अबाउट फंगस,
ये क्या करते हैं, ये मरे हुए जानवरों पे डिपेंड करते हैं। बहुत ही अच्छे एग्जांपल दो आपके, जैसे कि बैक्टीरियाज की बात करें तो होता क्या है, अर्थवॉर्म्स देख लो आप। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली अर्थवॉर्म जो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको खाता कौन है, उस अर्थवॉर्म्स को भी कौन खा जाता है, उन अर्थवॉर्म्स को बैक्टीरियाज इनगल्फ कर जाते हैं व्हेन दे बिकम dead. So it is a very good example of saprophytic mode of nutrition. What is parasitic mode of nutrition? Parasitic में क्या होता है, एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। तो जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर एक्ट करेगा फॉर द फूड। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं बेसिकली। दिस पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप। वन इज एक्टोपैरासाइट पैरासाइट एंड अनदर वन इज एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स के अंदर क्या होता है, जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी पे एक्सटर्नली डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ मॉस्किटो और लीच। आप मॉस्किटो और लीच की बात करो, मॉस्किटो क्या करता है, आपकी बॉडी पे आता है, खून सक करता है और उड़ जाता है। तो बेसिकली इसने अपना न्यूट्रिशन किससे लिया, आपकी एक्सटर्नल बॉडी से, इसलिए इट इज़ एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। बट अगर हम एंडोपैरासाइट की बात करें तो इट इज़ इनसाइड द बॉडी। कभी कभी देखते हो मम्मा हमारे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बच्चे ऐसी बातें करते हैं। अचानक उनके पेट में दर्द कैसे हो गया, बिकॉज ऑफ द एंडोपैरासाइट्स विच गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी। And those endoparasites are nothing but the ascaris. अब जनरल टर्म की बात करें तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपके बेटा आपके पेट के अंदर क्या आ गए हैं, टेपवर्म्स। तो ये टेपवर्म्स क्या करते हैं, आपके स्टमक से न्यूट्रिशन को लेते हैं and that causes pain in your stomach. So what is parasitic mode of nutrition? Where parasite live inside the or outside the body of the host to derive the nutrition. It is broadly classified into two categories. One is endoparasite, another one is ectoparasite. When parasite derive nutrition from outside the body, it is ecto. Endo means inside the body. You just have to remember the examples. Now third and very important mode of nutrition is holozoic mode of nutrition. In this organism take the solid food. वो जो ingest करता है ना, वो solid food को ingest करता है और क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर आप ध्यान रखो तो हम लोग कैसा खाना खाते हैं, हम सॉलिड फूड पार्टिकल्स खाते हैं। एनिमल्स कैसे खाते हैं, सॉलिड। चाहे तो घास को खा रहे हैं वो सॉलिड है, मांस खा रहे हैं वो सॉलिड है। तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन, सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू, वी ह्यूमन बींग्स और the animals come into this category. And in this chapter we are going to discuss about the holozoic mode of nutrition, that how human body convert complex food particle into the simpler one, and we'll discuss it in the next video. Thank you.